وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس، پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ کی شرکت۔ قومی اقتصادی کونسل نے آئندہ مالی سال کی معاشی اہداف کی منظوری دے دی۔ کونسل نے آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پلان کی بھی منظوری دی۔ اجلاس سے قبل بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے چاروں وزرائے اعلیٰ نے ملاقات کی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مختلف موٹر ویز کے لیے فنڈز کی تجاویز سامنے آ گئی۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے کی تعمیر کے لیے 30 ارب، سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے کے لیے 10 ارب اور کراچی کوئٹہ چمن شاہراہ کی تعمیر کے لیے 40 ارب روپے کا بجٹ مختص کرنے کی تجویز۔ شندور گلگت شاہراہ کی تعمیر کے لیے 4 ارب اور ہوشاب آوران فزدار سیکشن کے لیے 7 ارب روپے کا بجٹ مختص کرنے کی تجویز ہے۔ پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کا مثبت جواب دینے کے بجائے بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ پاکستان نے جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بیلاروس کے وزیر دفاع سے گفتگو۔ ملاقات میں بیلاروس کی فضائیہ کے کمانڈر کی بھی شرکت۔ شہباز شریف کا دونوں ملکوں کے درمیان دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کا عزم۔ کنیٹک ایکشنز کی تعریف ہو رہی ہے اور انڈیا کا جو نیو نارمل ہے وہ دفن ہو گیا۔ انڈیا کی ہیجمنی دنیا نے دیکھ لیا کہ ہوا میں اڑ گئی۔ ان کی سپرمیسی جو کلیم کرتے تھے کہ جی ہم وی آر دا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر، دیٹ از جسٹ بلون ان دی ایئر، سو دیٹ از جسٹ فیڈیڈ آؤٹ ان اے ویری سسٹمیٹک وے۔ اسی طرح ڈپلومیٹک ایفرٹس کو بھی گلوبلی ہیز بین ریکگنائز کہ جی پاکستان نے اپنی پوری گلوبل ایفرٹس کی اور ڈپلومیٹک ایفرٹس ان کی بڑی سکسیزفل تھی، اور انڈیا میں کافی آپ نے دیکھا کہ اس کا ماتم ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کو بلیم کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کی آؤٹ ریچ بہت الحمدللہ کامیاب نکلی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے حالیہ کشیدگی میں پاکستان کے بیانیے کو کامیاب قرار دے دیا۔ واضح کر دیا کہ بالادستی کا بھارتی دعویٰ دفن کر ڈالا۔ پوری دنیا نے پاکستان کا موقف تسلیم کیا۔ پاکستانی بیانیے کی تعریف ہو رہی ہے جبکہ بھارتی بیانیہ دفن ہو گیا۔ بھارت میں صف ماتم ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس۔ کہا پاکستان کی فتح پر مسلم امہ میں خوشیاں منائی گئیں۔ ترکی اور آذربائیجان میں تو لوگ خوشی سے سڑکوں پر آ گئے۔ پہلی کال ترکی کے وزیر خارجہ کی آئی۔ وزیر خارجہ کا ترکی سے اظہار تشکر۔ آگاہ کیا کہ چین نے سی پیک کو کابل تک توسیع دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ چین کی جانب سے عالمی ثالثی مرکز کے قیام کی تعریف۔ پاکستان نے بھارت کے خلاف اپنا مقدمہ اقوام متحدہ میں پیش کر دیا۔ بھارت کی جانب سے دہشت گردی کے الزامات مسترد۔ پاکستان میں بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کے ثبوت عالمی برادری کو پیش کر دیے۔ سنتاس معاہدے پر بھارت کا یک طرفہ رویہ ناقابل قبول قرار دے دیا۔ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں دنیا کے سامنے اجاگر کی۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد اقوام متحدہ کا دورہ مکمل کر کے واشنگٹن پہنچ گیا۔ بھارت کی آبی جارحیت اور اشتعال انگیزی سے امریکی حکام کو آگاہ کیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا اعلامیہ۔ بلاول بھٹو نے دہشت گردوں کے خلاف ISI اور را کے مل کر کام کرنے کی تجویز دے دی۔ اقوام متحدہ میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بلاول نے واضح کیا کہ بھارت کے ساتھ امن چاہتے ہیں مگر شرائط پر نہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات میں سندھ طاس معاہدے کی بحالی کے لیے فعال کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کا خط بھی اینٹونیو گوٹرس کو پیش کیا۔ پاکستان پر بھارت کی جانب سے لگائے گئے الزامات کو سختی سے مسترد کیا۔ خبردار کیا کہ بھارت نیا معمول قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو خطے میں بڑے تنازع کو جنم دے سکتا ہے۔ نریندر مودی کو اسرائیلی وزیر اعظم کی کاپی قرار دے دیا۔ India being inspired by the Israeli government, unfortunately it's being inspired in all the wrong ways. Some of the actions by the Indian government. But Mr. Modi is sort of the Timu version of Netanyahu. بھارت کی پھر آبی جارحیت، دریائے چناب میں پانی روک دیا۔ پانی کی آمد میں 9,000 کیوسک تک کمی۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد 25,000 کیوسک رہ گئی۔ گزشتہ روز پانی کی آمد 34,000 کیوسک تھی۔ ٹرمپ نے ٹیلی فون پر صرف اتنا کہا، نریندر
सरेंडर, जिस पर मोदी ने जी हुजूर कहकर अमरीकी सदर के इशारे की तामील की। भारत के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की भारतीय वजीर आजम पर कड़ी तनकीद। भारतीय सियासी क़यादत मोदी सरकार की पॉलिसियों से नाराज। हुकूमत की नाकाम हिकमत अमली पर शदीद तनकीद का इजहार। पाक भारत कशीदगी के बाद कौमी सलामती के मामलात पर कौम को एतमाद में ना लेने पर कड़ी तनकीद। कांग्रेस रहनुमा को आवाम से हक़ाइक़ छुपाने पर तशवीश। मोदी के दौरे हुकूमत में मजहबी त्यौहार मनाना जुर्म बन गया। ईद कुर्मा आते ही भारत ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत का तूफान मचाया। उत्तर प्रदेश में खुली जगह पर नमाज की अदायगी, गाय और ऊंट समेत दीगर जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी आयद। वजीर आला का खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। मेयर न्यूयॉर्क के इंतखाबी उम्मीदवार ज़ोहरान मामदानी ने नरेंद्र मोदी को जंगी मुजरिम करार दे दिया। साफ बता दिया जैसे नेतन्याहू वैसे ही मोदी दोनों मुसलमानों के कातिल हैं। ज़ोहरान मामदानी ने आलमी बरादरी को याद दिला दिया 2002 के गुजरात फसादात में 1000 से ज़ायद मुसलमान मारे गए थे। साइबर हमले, झूठी खबरें और गैर हकीकी दावे। भारत का बयानिया खुद भारतीय फौज के गले पड़ गया। ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा वक्त जाली खबरों में खर्च हुआ। भारतीय फौज एतराफ पर मजबूर। राफेल तैयारों से मुताल्लिक भारतीय जनरल के बयानात और मोदी की नाकिस हिकमत अमली पर भारतीय अपोजिशन बरहम। ऑपरेशन सिंदूर जैसी अस्करी कार्रवाई पर बीजेपी ने अपनी सियासत चमकाई। सिंगापुर में भारतीय फ़िज़ाइया के नुकसान का एतराफ मोदी हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब करता है। भारतीय हुकूमत की गलत जंगी हिकमत अमली का खुमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ा। कौम को अंधेरे में रखा गया। अपोजिशन रहनुमा और दिफाई माहिरीन फट पड़े। शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील दत्ता खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 14 भारतीय स्पॉन्सर खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान असेंबली में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी का मुखालिफिन पर लापता अफराद के मामले को रियासत के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल करने का इल्जाम। सूबे में सड़कें खुली हैं, अमन बहाल होने लगा। सरफराज भुगटी ने बलूचिस्तान में किसी भी किस्म का ग्रैंड ऑपरेशन खारिज से इम्कान करार दे दिया। आइंदा बजट सरप्लस और नौजवानों को फोकस करने की खुशखबरी भी सुना दी। मिसक्रिएंट्स की ये कैपेसिटी नहीं है कि ग्रैंड ऑपरेशन करने दें। यस, सूरत हाल ठीक नहीं है। एक्सटॉर्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ली जा रही है। जब आप ग्रे में ऑपरेट कर रहे होते तो फिर उसके जो रिजल्ट्स हैं थोड़ा वो स्लो मूविंग होते हैं। और इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान के लोगों से मैंने वादा किया था कि आपकी सड़कें बंद नहीं होंगी। आज आपकी हाईवेज खुली हुई। वज़ीर दाखिला का मौलाना फजल रहमान से पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी मौलाना की खैरियत दरियाफ्त की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अमरीका और पाकिस्तान का डिजिटल असासों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुआविन खुसूसी बिलाल बिन साकिब और अमरीकी डिजिटल असासाजात कौंसिल के अहदेदार की मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन 1,21,000 की सतह उबूर कर गई। 100 इंडेक्स 1347 पॉइंट से इजाफे के साथ बंद। वजीर आजम ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए मशावरत का आगाज कर दिया। शहबाज शरीफ का अपोजिशन लीडर उमर अयूब को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए मुलाकात की दावत। इलेक्शन कमीशन में उमर अयूब के खिलाफ स्पीकर के रेफरेंस की समाअत। उमर अयूब के इस्तेदा पर समाअत 24 जून तक के लिए मुलतवी। अपोजिशन लीडर ने स्पीकर को खत लिखकर रेफरेंस की तफसीलात मांग ली। अपने खिलाफ रेफरेंस फरमाइशी प्रोग्राम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़ा पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ PFUJ एंकर्स और सहाफती तंजीमों की दरख्वास्त। अदालत ने जवाब जमा कराने के लिए वजारत कानून, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, FIA और PTA को आखिरी मोहलत दे दी। कराची में कैदाबाद, शाह लतीफ टाउन, भैंस कॉलोनी समेत कई इलाकों में जल्जले के फिर झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.1 रिकॉर्ड, गहराई 80 किलोमीटर। शहर कायद में इतवार से अब तक 26 बार जल्जले के झटके महसूस किए जा चुके हैं। शदीद जल्जले की पेशगोई करना मुमकिन नहीं। शहरी अफवाहों पर कान ना धरें। सुनामी वार्निंग सेल के सरबराह अमीर हैदर लगारी की डॉन न्यूज से गुफ्तगू।
सिंध में निजी मेडिकल कॉलेजेस ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। सालाना फीस 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी। वजीर आजम की हिदायत पर मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म्स के तहत निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की फीस 18 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। PMDC गैर फाल होने से निजी कॉलेजेस और जामियात को भी खुली छूट मिल गई। निसार साहब ने जो फाइनल जजमेंट दी थी उसमें कहा था कि एक ऑडिट फर्म से कि आप इनके फ़ीस को भी देखें और इनकी फैकल्टी को भी देखें, इनकी तनख्वाहें देखें, इनके रेंटल जो भी खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू, दोनों को देखें कि कितना हम इजाफा कर सकते हैं। तो एक गोल मोल बात में था कि 10% आप एवरी ईयर इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, लेकिन 10% से बहुत ज़्यादा बढ़ी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वज़रा और अफसरान को तख्तियां लगाने के बजाय काम पर तवज्जो देने का हुक्म। स्वाबी में कॉन्वोकेशन से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा तालीम के बजट पर काम कर रही है। अठारह साल से कम उम्र बच्चों की शादी पर पाबंदी का कानून फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज। शादी से मुतालिक कानून कुरान और हदीस के खिलाफ बनाया गया है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। कराची की मलिर जेल से फरार एक और कैदी सिविल लाइन से गिरफ्तार। अब भी 126 कैदी आजाद। जेल के अंदर और बाहर सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं और फरार होने वाले एक और कैदी ने अज खुद गिरफ्तारी पेश कर दी है। टिकटॉकर सना यूसुफ की चित्राल में तदफीन। इस्लामाबाद की अदालत ने मुलजिम उमर हयात को शनाख्त परेड के लिए जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम किराए की गाड़ी इस्तेमाल करके खुद को जागीरदार जाहिर करता है। बलोचिस्तान के इलाके केस में नामालूम मुसल्लह अफराद ने असिस्टेंट कमिश्नर तुंग को अगवा कर लिया। मोहम्मद हनीफ ईद की छुट्टियों पर फैमिली के हमराह कोयटा जा रहे थे। तुर्बत के करीब 6 मुसल्लह अफराद ने अहले खाना और गनमैन को सरकारी गाड़ी से उतार कर कमिश्नर को साथ ले गए। डेप्यूटी कमिश्नर केस ने वाक़े की तस्दीक कर दी। बलूचिस्तान के शहरों सोराब और नोशकी में मास्क पहनकर या चेहरा ढांपकर नकलो हरकत पर पाबंदी आयद। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी 10 जून तक पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद में कॉल सेंटर के जरिए अरबों रुपए लूटे जाने का इंकशाफ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में इब्तदाई तौर पर 172 अरब रुपए का रिकॉर्ड सामने आया। एक खातून और निजी बैंक मैनेजर गिरफ्तार। नेटवर्क में साइबर क्राइम के बाद आला अफसरान के मुलव्विस होने पर तहकीकात जारी। कराची के इलाके मंगोपीर में ट्रेलर रोकने पर शरपसंदों का ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर डंडों और पत्थरों से हमला। मोबाइल को नुकसान, 2 एहलकार जख्मी हो गए। कराची में सदर मोबाइल मार्केट के करीब डाकुओं ने दिन दिहाड़े ताजिर से 58 लाख रुपए छीन लिए। ताजिर बैंक से रकम निकालकर पैदल दफ्तर जा रहा था। वाक़े की फुटेज मंजर आम पर आ गई। लाहौर के इलाके कहना में पुलिस ने असलहे की बड़ी खेप पकड़ ली। 4 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। जदीद राइफलें, दर्जनों पिस्तौल और सैकड़ों गोलियां बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIA ANCB इंटरपोल की कार्रवाई। कत्ल के मुकदमे में मतलूब 2 इश्तिहारी मुल्जिमान को UAE से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान पंजाब पुलिस को मतलूब थे। मुल्तान में फलों का बादशाह भी चोरों के निशाने पर आ गया। 6 दरख्त काटकर बाग से 50 मन आम उड़ा ले गए। वाकया 6 रोज कबल पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब में पुलिस के इंसदादी मुनशियात ऑपरेशन जारी। 24 घंटों के दौरान मुनशियात फरोशों के ठिकानों पर 222 छापे। 128 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। मुल्जिमान से 288 किलोग्राम चरस, 81 किलोग्राम अफीम बरामद। झंग से अगवा होने वाला 2 साला बच्चा बाजियाब। मुल्जिमा बच्चों की मां निकली। पुलिस के मुताबिक खातून ने घरेलू झगड़े पर इक़दाम उठाया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ईरान में दहशतगर्दों की फायरिंग से जाम बहक 8 पाकिस्तानी के वरसा में इमदादी चेक्स तकसीम। 30
10-10 लाख रुपए के चेक्स दिए गए। 12 अप्रैल को ईरान के सूबा सिस्तान में दहशतगर्दों की फायरिंग से बहावलपुर के रिहायशी 8 अफराद जाम हक हुए थे। पंजाब की जेलों में कैदियों की खुदकुशी के वाकयात पर हिफाजती इंतजामात बढ़ाने का फैसला। कैदियों पर नजर रखने के लिए बैरिकों में मजीद अमला तैनात और कैदियों को बैरिक्स में ठेकरी पहरा पर मामूर किया जाएगा। IG जेल खाना जात पंजाब ने तमाम जेल सुपरिटेंडेंट्स को मरासला भिजवा दिया। कराची के जिना हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया डॉक्टर्स की शदीद कमी के बायस पित्ते के मामूली ऑपरेशन के लिए भी 1 साल का वक्त दिया जाने लगा। लाहौर में अब चालान सबूत के साथ होंगे। ट्रैफिक वार्डन्स की वर्दी के साथ कैमरे मुंसलिक करने का सिलसिला शुरू। इब्तिदा में माल रोड पर ट्रैफिक वार्डन्स की वर्दियों पर बॉडी कैम लगा दिए गए। पेशावर में पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन का गजा में इसराइली जहरियत के खिलाफ एहतजाज। आलमी बरादरी से गजा में इसराइली मजालिम और इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां बंद करने का मुतालबा। गजा पर सहूनी फौज के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में 95 फलस्तीनी शहीद, 440 जख्मी। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली दहशतगर्दी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 54,607 हो गई। 1,25,000 से ज्यादा जख्मी। गजा तक इमदाद पहुंचाने के लिए फ्रीडम फ्लोटेला का इमदादी बहरी जहाज तबाहशुदा पट्टी की जानिब रवाना। जहाज पर क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग समेत 12 अफराद सवार हैं। जहाज 7 जून तक गजा पहुंचने की तवक्को है। इससे पहले माल्टा से आने वाले जहाज इसराइली बमबारी के बायस गजा तक पहुंच नहीं सका था। यूक्रेन की जानिब से रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले सड़क और रेलवे पुल तबाह करने के बाद रूस की कीव में जवाबी कार्रवाई। ड्रोन्स और मिसाइलों के हमले में अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर की रिहाइशगाह में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश करने वाले 23 साला नौजवान को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार नौजवान ट्रंप की 18 साला पोती काई ट्रंप से शादी की ख्वाहिश रखता है। अमरीकी के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर इलेक्ट्रिक तैयारे ने 45 मिनट परवाज के बाद कामयाब लैंडिंग की। तैयारे में 1 पायलट और 4 मुसाफिर सवार थे। इंसान के आज़्म से सब कुछ मुमकिन। इराकी काश्तकार ने सहरा को जरखेज बना दिया। पानी के कम इस्तेमाल के लिए स्प्रिंकलर्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। दीगर तरीकों की निस्बत काश के रकमे में भी इजाफा। मनासिक हज का आगाज हो गया। एहराम बांधने और 2 रकअत नफिल अदा करने के बाद आजमीन का मिना रवानगी का सिलसिला जारी। आजमीन मिना में ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज अदा करेंगे। मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद हो गई। आजमीन कल हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा कल अदा करेंगे। हज के मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सऊदी अरब में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। हजारों एहलकार फराइज अंजाम देंगे। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मशक़ों में अमली महारत का मुज़ाहरा किया। कुर्बानी के जानवरों का हार सिंगार, माला, घुंघरू और दीगर अशिया से जानवरों को सजाकर खरीदारों को माइल करने की कोशिश। सिंध की मवेशी मंडियों में खूबसूरत जानवरों की आमद। सस्ते के चक्कर में कराची समेत दूर दराज इलाकों से शहरी खरीदारी के लिए पहुंच गए।